एक तो आप आसाराम बापू वाले केस में बहुत सेंट्रली इन्वॉल्व थे। मैं पुलिस कमिश्नर सूरत था जी। आई वॉज सिटिंग इन माई ऑफिस, शाम का समय था। मेरी एक डीसीपी है, वो आई, बोली सर एक लड़की आई है मेरे रेप का कंप्लेंट दे रही है और शी इज नेमिंग आसाराम बापू सन। This self-styled godman is accused of the most unholy crime. उसने जो भी रिवील किया दैट वाज हैरोइंग। Are you at liberty to disclose कि what is the kind of interrogation techniques you are employing in that moment? इंटरोगेशन आजकल कोई मारपीट नहीं करता, पीटने से कोई नहीं बोलता है। कोई I'm नहीं telling बोलता। you, वो हाँ। जो बोलेगा झूठ बोलेगा। What about polygraph, sir? उसमें You were also famously involved in the Lalu Prasad Yadav fodder scam. मान लीजिए 1000 रुपए अलॉट हुए चारे के लिए, तो ये जो एक्यूज थे ये उसमें 1000 के आगे 2 जीरो और लगा दे। उसके लिए उन्होंने वाउचर्स गलत बनाए, बिल्स गलत बनाए, तो इसमें जो सप्लायर्स थे वो कनाइव करके उन्होंने ट्रेजरी से पैसा साइफन ऑफ। अब आप जा रहे हो इनको अरेस्ट करने, जिसके लिए पॉलिटिशियंस और गॉडमैन आर पीपल दैट सिविलियंस विल स्टैंड इन लाइन कि हम नहीं होने देंगे इन्हें। व्हाट डज ऑफिसर थिंक इन दैट मोमेंट एंड हाउ डज दैट इंटरेक्शन हैपन कि सर हमारे पास वी हैव ऑर्डर्स टू अरेस्ट यू? Want to take your workouts to the next level? Creatine is a game changer for weightlifters. It helps build muscle mass, increase strength, and reduce fatigue. Plus, it improves focus and mental clarity. But not all creatine supplements are created equal. Muscle Blaze's Creamp creatine monohydrate is a superior choice. It's a blend of micronized creatine and Creabsorb, which ensures maximum absorption. So you get the most out of every scoop. Whether you're a meat eater or vegetarian, creatine can benefit you. It's especially important for vegetarians because there's a lack of natural sources of creatine in the vegetarian diet. Ready to experience the power of creatine? Try Muscle Blaze Creamp Creatine Monohydrate. Check out the link in the description. Now back. Sir, thank you so much. आप इतना टाइम निकाल के आए. I've been waiting for like a month. मैं इतना excited हूँ ना इस conversation के लिए. तो you've been police commissioner, IG and DIG of several states. You have been the head of border security forces. You've also held the portfolio of I think DG at narcotics. Yeah. And then you've been deputed with the CBI. You've been what position have you held there, sir? I was in the second stint, I joined as additional director, As additional. then became a special director, Right. and I had held charge of director for a brief period of time, Okay. for about 2 months or so. So Director is the main and the special and the additional are yeah, peripheral. yeah. Okay. Yeah. मेरे को ऐसा नहीं लगता सर कि ये जनरली लोगों का करियर ट्रेजेक्ट्री होता होगा. लाइक आई फील लाइक दिस इज प्रोबेबली द आइडियल करियर ट्रेजेक्ट्री एज अ पुलिस ऑफिसर. Yeah, of course, it Right. is a dream thing. is a dream thing. Because I had held 5 positions of the DG level at the center. So it's a dream thing for me, of course, no doubt about it. फॉर अ लेमैन, मतलब हम तो सर आर इंटरेक्शन विद द टर्म सीबीआई इज फ्रॉम द न्यूज एंड द न्यूज इज अ सेंसेशनलिस्ट मीडियम. ठीक है, न्यूज को हमें बताने में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें चौंकाने में इंटरेस्टेड है. ठीक है, तो हम लोग ना सीबीआई के बारे में जब सुनते हैं, जब हालत हो जाती है पारे के बाहर, लाइक फॉर इंस्टेंस राइट नाउ द टर्म सीबीआई इज इन द न्यूज बिकॉज ऑफ द कोलकाता सिचुएशन दैट इज हैपनिंग. Yeah. और एज अ लेमैन हमें लगता है कि भाई शायद ना the cases go to CBI when there is a lot of media pressure on a case, but that I'm sure is not the case. एक jurisdiction होता होगा CBI का कि इस अगर situation ऐसी है then the CBI will intervene, वरना पुलिस intervene करेगी. My larger question is, क्या चीजें पुलिस handle करती है and then what things are handled or given over to the CBI? देखिए, बेसिक चीज हमें समझनी पड़ेगी। आर स्ट्रक्चर इज ए फेडरल स्ट्रक्चर। जी. इट्स ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, जी. इंडिया। The central government is there, state government is there. So far as police is concerned, it is the state subject. Center cannot interfere in that. But in certain aspects, of course, in the interest of national security, sovereignty, integrity, central government plays a big role. CBI came into being in 1946. बेसिकली टू डील विद द एंटी करप्शन केसेस. अच्छा. तो सीबीआई का जो स्ट्रक्चर है, शुरुआत में एंटी करप्शन केसेस को टेकअप करना और उसको इन्वेस्टिगेट करना. एंटी करप्शन मींस करप्शन, टू हैंडल करप्शन एट द हायर लेवल्स. ओके. तो सीबीआई वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एंड इसका जो एक्ट है वो ये प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम हो, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, तो उनसे जो भी रिलेटेड करप्शन के केसेस हैं वो सीबीआई डायरेक्टली ले सकती है। वो ऑटोमेटिकली जुरिसडिक्शन अज्यूम कर सकता है, ठीक है। दूसरा है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई केस, अच्छा उसमें एक एक्ट में ये भी है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को कंसेंट देना पड़ेगा कि हम सीबीआई को अलाउ करेंगे अपने स्टेट में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इवन इफ द केसेस ये सेंट्रल गवर्नमेंट करप्शन केसेस है तो भी स्टेट को कंसेंट देना पड़ेगा। कंसेंट होना चाहिए, ठीक, मतलब उसके बगैर सीबीआई उस स्टेट में ऑपरेट नहीं कर सकती है। ठीक। तीसरा ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, वो अगर रेफर करते हैं मैटर सीबीआई को, तो सीबीआई कैन टेक इट अप। ठीक। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, सीबीआई हैज बिकम प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन द कंट्री। एंटी करप्शन के अलावा भी जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, चीटिंग के, फ्रॉड के, बड़े बड़े फ्रॉड्स, पीएमएलए, नहीं पीएमएलए, अभी पीएमएलए नहीं है। अच्छा ठीक है। फ्रॉड, चीटिंग, बैंक फ्रॉड है, इंश्योरेंस फ्रॉड है, बड़े फ्रॉड्स हो गए, जैसे आप कह रहे हैं विजय माल्या वाला केस है, या और भी बड़े बड़े फ्रॉड केसेस है, वो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। उसके अलावा एक विंग है स्पेशल क्राइम्स का, जिसमें सीबीआई सेंसेशनल मर्डर, डिकॉइटीज और कोई भी सेंसेशनल क्राइम हो, वो सीबीआई को अगर रेफर होता है तो सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेट। तो सीबीआई का एक्सपर्टीज एंटी करप्शन केसेस के अलावा इकोनॉमिक ऑफेंसेस, चीटिंग, फ्रॉड के केसेस और स्पेशल क्राइम के केसेस में है। और चूंकि मैं सीबीआई में काफ़ी लंबे अरसे तक रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सीबीआई इज़ वेल इक्विप्ड टू इन्वेस्टिगेट एनी case which has a national importance, which is sensational, or which has international ramifications. You will stand by that statement कि वो कर लेती है सीबीआई, मतलब हमारे पास है। सीबीआई आप चाहे कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, सीबीआई अपने देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। सीबीआई जो भी इन्वेस्टिगेशन करती है, क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करती है, और सीबीआई हमेशा सच जो है उसको बाहर लाने की कोशिश करती है। अगर एविडेंस है तो वो केस चार्जशीट करती है, एविडेंस अगर नहीं मिलता है तो नेचुरली वो क्लोजर रिपोर्ट या दूसरे तरह का एक्शन लेती है। लेकिन सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी जो है वो टॉप क्वालिटी है, टॉप क्वालिटी, उसमें कोई शक नहीं। सीबीआई के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, दे आर वेल ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल्स। I can see that. In fact, मैं तो ये मानना भी चाहूँगा ना सर, like as a young person in this country, I would like to believe in जो हमारे देश के institutions हैं, sovereign bodies हैं। मेरे को again it's a very layman's perspective, पर जो अच्छा आप अगर एंटी करप्शन केसेस हैंडल कर रहे हो टॉप लेवल पे, आप सेंसेशनलिस्ट मीडिया ट्रायल्स हैंडल कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस और फोरेंसिक और इन सब चीज़ों के साथ, एक तो मेरे को लगता है ये लो प्रेशर जॉब तो बची नहीं। आप you cannot have a pressure-free investigation at that point. You are investigating somebody top-notch. There are channels in the back that work in a way to put pressure here and there. We cannot argue against that. फिर आप इतना सेंसेशनल मैटर हैंडल कर रहे हो, मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि सीबीआई को दिया इसलिए जाता है ताकि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ सके कि तुम्हारी बॉडी नहीं कर पा रही। ये भी होता ही है ना सर? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, सीबीआई के पास जो भी इन्वेस्टिगेशन आता है वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। छोटे केसेस नहीं आते हैं, बड़े केसेस आते हैं। और बड़े केसेस का मतलब उसमें जो लोग वॉल्यूम ऑफ क्राइम या इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल बड़े लोगों का होता है, इन्फ्लुएंशियल लोगों का होता है। तो सीबीआई के जो भी अधिकारी हैं, दे आर अट्यून्ड टू सच टाइप ऑफ बिग केसेस, हैंडलिंग सच बिग केसेस, चाहे वो मीडिया का प्रेशर हो, चाहे किसी का भी प्रेशर हो। इन्वेस्टिगेशन करते समय प्रेशर को कैसे विदस्टैंड करना है, सीबीआई ऑफिसर्स नो वेरी वेल। what is the inside wisdom on that? कैसे करते हैं सर? Because media pressure, it shakes politicians, media pressure at this point ना।
CBI just generally CBI is not a public organization. Right. You will not find CBI officers talking to the media, Right. yeah, handling the media, yeah, talking to the people openly. It's a closed organization and that is a good thing. क्योंकि कोई भी सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन होता है तो जब तक आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ना। तो आपको अगर आप बात करने लगेंगे मीडिया से या किसी और से तो इन्वेस्टिगेशन का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। हाँ बिल्कुल। तो नॉर्मल ट्रेनिंग जो सीबीआई में ऑफिसर्स की है वही आप अपने काम से मतलब रखें, प्रोफेशनल काम करें और किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। और आई एम सॉरी मैं इतनी मॉर्बिड डिटेल्स में इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज आई कैन टेक फॉर ग्रांटेड कि सर काम करने के लिए टॉप नॉच ऑफिसर्स होंगे सीबीआई में, बट एक ये भी तो बात होती होगी ना सर, जैसे मान लो जब तू रिटायर होगा ना तब तेरे को देख लूंगा टाइप के लोग भी तो होते होंगे सर। लाइक आई एम जस्ट इमेजिनिंग दिस इज ह्यूमन बिहेवियर ना, आई एम इंटरफेसिंग ह्यूमन बिहेवियर विद अ सिस्टमैटिक बॉडी। या उस लेवल पे इज देयर नो फियर, हैव यू लाइक आर देयर नो डेथ थ्रेट्स बिकॉज यू आर डूइंग वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ वर्क, वेरी हाई प्रोफाइल वर्क। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, हम्म। मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन में देखा है जो भी केसेस होते हैं उसमें किसी का पर्सनल इंटरेस्ट तो होता नहीं। आप चूंकि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, आपकी वो ड्यूटी है कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है। तो जो भी एक्यूज्ड होते हैं उनको पता है कि इट इज़ देयर ड्यूटी विच दे आर डूइंग। प्रॉब्लम कब आती है? व्हेन यू आर नॉट फेयर। सपोज कीजिए यू हैव कमिटेड अ क्राइम, नॉट कमिटेड अ क्राइम, और केस मेरे पास आया और मैं पर्सनल वेंडेटा है। पर्सनल वेंडेटा लेके आपको फिक्स कर दूं तो आप खुश तो नहीं रहोगे ना। नहीं। यू विल ऑलवेज फील कि इट्स नॉट करेक्ट। कई लोग होते हैं जो फिर रिवेंज लेते हैं उस चीज़ का। सीबीआई में ये चीज़ नहीं है। आप पर्सनल वेंडेटा नहीं है। सीबीआई में एविडेंस के ऊपर जाते हैं और एविडेंस भी ऐसी नहीं है कि आपके अगेंस्ट में किसी ने कुछ कह दिया तो वो एविडेंस हो गया। कोरॉबोरेशन चाहिए। मोस्टली सीबीआई डॉक्यूमेंट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन करती है या फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करती है जिसमें फोरेंसिक एविडेंस हो। तो फेयरनेस रहती है और जब काम में फेयरनेस रहेगी तो लोग बाग नाराज नहीं होंगे। जिसने गलती की है वो जानता है कि मैंने गलती की है, सो मैं कोर्ट में ट्रायल फेस कर लूँगा। मैंने भी अपने करियर में बहुत से सेंसिटिव केसेस बड़े बड़े लोग किए हैं, बट आज तक कभी महसूस नहीं किया कि कोई मेरे से नाराज है या पर्सनल कोई। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन यू आई नो मैं उन सेंसिटिव केसेस पे आना चाहता हूँ एंड दे आर वेरी सेंसिटिव केसेस, तो लाइक देयर हैज नेवर बीन अ कॉल बैक कि भाई यू नो सो एंड नहीं, लोग बाग आपको इन्वेस्टिगेशन के दरमियान या प्रोसिक्यूशन के दरमियान दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू, ट्राई टू सी कि मेरी बात सुन ले या मेरी तरह से कर दे। बट आपका ये करेक्टर होना चाहिए कि यू कैन विदस्टैंड द प्रेशर्स, विदस्टैंड। एंड चूँकि बहुत इन्फ्लुएंशियल बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग भी इन्वेस्टिगेटेड होते हैं तो उनको लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो उनकी बात सुनी जाए। ठीक है। तो सीबीआई में कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि अगर कोई एक्यूज्ड है तो वो खुल के आईओ से या सुपरवाइजरी ऑफिसर से बात कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। फिर हम लोग उसको इन्वेस्टिगेशन में उसने जो कहा है उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं, रिबट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो रिबट हो जाता है तो वो झूठा है, और रिबट नहीं होता है तो टू दैट एक्सटेंट he has his point और she has her point। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत फेयरली इन्वेस्टिगेशन होता है। ओके। कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले वो कोई भी इंडिविजुअल एक्यूज हो उसके खिलाफ एविडेंस क्या है उसकी बहुत ही इन डेप्थ स्क्रूटनी होती है। तो चार्जशीट कोर्ट में फाइल करनी है या नहीं करनी है वो डिसीजन भी बहुत सोच समझ के लिया जाता है। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि होता क्या होगा, सपोज देयर इज अ केस दैट इज अब सीबीआई की जुरिस्डिक्शन में है, तो अब यू विल सेट आउट टू इन्वेस्टिगेट
इन्वेस्टिगेशन के आपने बताया, एक तो डॉक्यूमेंटेशन हमें पकड़ना है, वट एवर डॉक्यूमेंट्स वी कैन फाइंड, पेपर ट्रेल्स वी कैन फाइंड, एंटी करप्शन में तो पेपर ट्रेल्स वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम अज्यूमिंग, अकाउंट्स एंड सच। या हमें फोरेंसिक साइंटिफिक एविडेंस मिलेगा, ये एविडेंस हमें थर्ड पार्टी सोर्सेज से मिल सकता है कि हमने बैंक्स को फ़ोन किया और बैंक से कुछ स्टेटमेंट्स रिक्वेस्ट करी, या मेरे ख्याल से रेड्स, यू प्रॉबेबली कंडक्ट रेड्स एज वेल एट सीबीआई, और उसके बेसिस पे एक केस बनता है। ये सर जो डॉक्यूमेंटेशन और फोरेंसिक, एक्चुअली फोरेंसिक इज अ प्रॉबेबली अ मोर इंटरेस्टिंग एंड, हाउ डू यू गैदर फोरेंसिक एविडेंस, व्हाट डज फोरेंसिक एविडेंस मीन? फॉरेंसिक जैसे आप अभी ये केस के बारे में जिक्र कर रहे थे, अब इसको आप, देयर इज नो आई विटनेस टू इट, ओके, यस। इस केस में कोई आई विटनेस हो ही नहीं सकता। में जो प्रोसिक्यूट्रिक्स होती है, जो मतलब विक्टिम होती है जी। अगर वो जिंदा है तो उसका बयान जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस में जैसे अनफॉर्चुनेटली विक्टिम इज नो मोर, शी हैज बीन मर्डर्ड, तो आपका पूरा केस साइंटिफिक एविडेंस पे बेस होगा। जैसे मान लीजिए लड़की का जो विक्टिम का जो पोस्टमार्टम हुआ जी। उसमें जो फाइंडिंग्स आई, एक तो वो, और जो एक्यूज पकड़ा गया है उसका जो फिजिकल एविडेंस है वो उसको मैच कराना पड़ेगा। डीएनए टाइपिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, राइट। वो मैच कर गया तो दैट इज ए क्लिंचिंग एविडेंस। फिर बाकी सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जैसे वो कब आया, किसने देखा, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, तो ऑल दीज थिंग्स, मतलब इन्वेस्टिगेशन में किसी एक एविडेंस पे आप नहीं उसको बेस कर सकते। और फॉरेंसिक एविडेंस क्या होता है, आप क्लिंचिंग होता है, मतलब इवन कोर्ट विल एडमिट किया सफिशिएंट एविडेंस है, राइट। और इन दिस केस जैसे मान लीजिए बॉडी में से जो सीमेन मिला और इसका डीएनए सैंपल, डीएनए सैंपल मैच कर जाता है तो फिर खत्म बात। खत्म बात। So these are the things which we look into so far as forensic evidence is concerned. और forensic evidence का basic principle क्या है कि कोई भी क्रिमिनल जब क्राइम करता है तो जगह पे कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है, हमेशा, हमेशा, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, फिंगरप्रिंट हो, बाल हो, बाइट का निशान है तो टूथ मार्क्स हो, एनीथिंग, स्पिट कर दिया हो, तो वो चीज़ अगर हम बहुत ही अच्छे इन्वेस्टिगेटर हैं तो हमारा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जिस जगह हुआ वहाँ पे क्या स्थिति थी और वहाँ से ही एविडेंस मिलेगा आप। देन यू कनेक्ट द क्राइम विद द क्रिमिनल, दैट इज कॉर्पस डेलिक्टी बोलते हैं उसको, कनेक्ट द क्राइम विद द क्रिमिनल। तो वो अगर आप कर लेते हैं विद द फॉरेंसिक एविडेंस तो बाकी तो कोरबोरेटिव एविडेंस कलेक्ट करके कैन फाइल अ चार्जशीट। कोर्ट भी ये जो फॉरेंसिक एविडेंस को बहुत महत्व देती है। आई अंडरस्टैंड, देयर इज एक तरीके का अनडिनाइबिलिटी होगी ना साइंटिफिकली। और आई एम अज्यूमिंग कि आपको जब एविडेंस कलेक्ट करना है एज एन इन्वेस्टिगेटिव बॉडी तो इट हैज़ टू बी एविडेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, एक इस तरीके का कोई एक पैरामीटर होता होगा। एविडेंस कलेक्शन के लिए एसओपीज होती हैं, आप ऐसे ही जाके नहीं उठा सकते। इट हैज़ टू बी, सीन हैज़ टू बी फोटोग्राफ्ड, वीडियोग्राफ्ड। आपको कोई भी हैंडल करना है तो आप अपने खाली हाथ से नहीं कर सकते, हैव टू वेयर द ग्लव्स, राइट। एंड उसका पंचनामा, इसी ठीक है ना? नहीं चल रहा है, सॉरी प्लीज। उसका पंचनामा ड्रॉ करना पड़ता है, पंचक इंडिपेंडेंट विटनेसेस के सामने हम लोग सीजर करते हैं। एसओपी है वो तो फॉलो करनी पड़ती है। और जनरली ट्रायल में जो अगर एविडेंस बहुत स्ट्रांग है तो अगर एसओपी वायलेट हुई है तो उस पर क्वेश्चंस करते हैं बेसिकली। मेरे को ये थोड़ी एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा लगता है, सिंस आई कम फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड इन माय फैमिली, मेरे को लगता है कि ना जैसे अब फॉर ये जो कोलकाता वाला केस भी है, आप अगर क्राइम सीन छेड़ दो या आप किसी तरीके से एसओपी में एक माइनर वायलेशन दिखा दो, आप तो पूरे एविडेंस को डिस्काउंट कर सकते हो। एंड नॉट ओनली दैट बट एविडेंस
को tamper, destroy. Like I think there are ways in which the evidence can be influenced such that जो आप as an investigator कह सकते हो कि नहीं नहीं ये है. There is also human application of intelligence. There is also the pattern looks like I know what I'm saying, but I cannot prove it in evidence. और वो gap में भी काफी लोग छूट जाते होंगे सर. नेचुरली हम्म। अगर आपका तरीका एविडेंस कलेक्शन करने का गलत है, अनप्रोफेशनल है, तो उसका लाभ तो एक्यूज्ड को मिलेगा. और डिफेंस लॉयर जो भी होंगे उन चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे. अभी जैसे आप पेपर में पढ़ते होंगे इंद्राणी मुखर्जी वाला जो केस है, जिसमें शी हैड क्लेम्ड कि जो डेड बॉडी मिली वो किसी और की थी. ठीक है. Right. एंड देन मैंने तो पेपर में पढ़ा था. देन ये क्लेम किया गया कि जो उसका जो डीएनए टेस्ट हुआ था उसमें पेंसिल से करेक्शन किया गया है. हाँ. ऑल दोज थिंग्स विच जो ये हम गड़बड़ करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं एविडेंस कलेक्शन करने के टाइम, और डिफेंस उसका फ़ायदा लेता है. और कई दफ़े बहुत सीरियस लैप्स हो जाता है तो केस छूट जाता है. बिकॉज अगर किसी को कन्विक्ट करना तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चाहिए. ट्रायल में क्या होगा वो अलग ही स्टोरी है. हाँ. हाँ. आप इंद्राणी मुखर्जी वाले केस में तो इन्वॉल्व नहीं थे? नहीं मैं पढ़ रहा हूँ. हाँ, वो बड़ा वियर्ड केस था वैसे. है? कुछ भी हो रहा है सर उस केस में, यही नहीं पता कौन किसका बच्चा है, कौन किसकी बहन है. मतलब वो नहीं वो सारी चीज़ें क्लियर है. बाद में हुई ना. द ओनली थिंग इज दैट कि जो अब आप मैंने जो पहले कहा था वो ये है कि हाँ. आपको कनेक्ट करना पड़ेगा. हाँ. और वहाँ जिसकी डेड बॉडी मिली और जो मर्डर का चार्ज उन पे लगा, डिफेंस तो ये कहता वो बॉडी उनकी डॉटर की है ही नहीं. शीना बोरा की है ही नहीं है. जी. और जो शीना बोरा को कनेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक एविडेंस लिया गया वो डाउटफुल है. तो अगर बॉडी उसकी नहीं है और एविडेंस डाउटफुल है तो आपका केस कहाँ स्टैंड करेगा. हाँ, तो दिक्कत हो जाएगी. तो एज एन प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर, राइट, व्हेन वी इन्वेस्टिगेट तो हम ये चीज़ का ख्याल रखते हैं. वाओ. ये सारी चीज़ें हैं. आप जो बोल रहे हो ना कि Right. एविडेंस अगर गलत तरीके से कलेक्ट किया है तो उसका फ़ायदा तो एक्यूज को मिलता है. It's a fact. So one has to be very careful while handling the big ticket cases. I have a hypothetical stupid question. The principle in forensic is कि कोई भी आदमी क्राइम करेगा वो कुछ ना कुछ छोड़ के जाएगा. बिल्कुल. वो अगर उस कमरे में सांस ले रहा है तो कुछ तो गिर रहा है. ठीक है. मेरे शो पे आरजी कर कॉलेज के आसपास के किसी यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर्स आए हुए थे अभी 1-1.5 हफ्ते पहले. उन्होंने मेरे को एक बात बोली बड़ी इंटरेस्टिंग. कहते हैं जब डॉक्टर्स क्राइम कमिट करते हैं ना उन्हें पता है क्या फोरेंसिक एविडेंस हटाना है. ओ, मैं नहीं एग्री करता. अच्छा, आप नहीं एग्री करते हैं. यू डोंट थिंक दैट्स अ परफेक्ट क्राइम? बहुत रेयर है. और जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट हुआ है वो बड़ा क्रूड मैनर में क्राइम किया हुआ. उसमें क्या छिपा सकता है. वो रेनोवेशन कर दिया ना सर कमरे का, तोड़ दी दीवारें, वॉश बेसिन तोड़ दिया. उससे कुछ नहीं, वो जो एविडेंस मिलना था मिल गया होगा. अच्छा. तो उसमें वो कितना भी लिपापोती कर ले वो आई डोंट थिंक कि वो कुछ छुपा. हो सकता है कुछ डिस्ट्रॉय कर ले जी, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो मिल गई होगी. डेफिनेटली मिल गई होगी. आप in my research on you've headed practically led 2, 3, 4 very sensitive cases in the Indian law enforcement history. Yeah. You were I might mistake this, so मेरे को करेक्ट कर देना सर. एक तो आप आसाराम बापू वाले केस में बहुत सेंट्रली इन्वॉल्व थे. मैं पुलिस कमिश्नर सूरत था जी. तो वहाँ पे 2013 इफ आई रिमेम्बर करेक्टली एक कंप्लेंट हमने रजिस्टर की थी अगेंस्ट आसाराम बापूज सन नारायण साई. उसी दरमियान में एक और लड़की आई थी जो अगेंस्ट आसाराम बापू उसने कंप्लेंट दी थी, लेकिन उसका जुरिडिक्शन बनता था अहमदाबाद तो हमने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था. नारायण साई वाला जो केस था वो वहीं सूरत में इन्वेस्टिगेट हुआ था. जी. और उसमें एक तो ग्लेरिंग कॉम्प्लिकेशन ये है कि गॉडमैन
are a very different sort of civilian, to put it, you know. मेरे को याद है जब ये न्यूज़ वगैरह आती थी तब एक बात था कि जब उनको अरेस्ट वगैरह करने जा रहे थे तो लोग लेट गए थे. इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ अप्रोच हिम. एंड देन आई आल्सो रिमेंबर नारायण साई वाज ऑन द रन. वो शायद यहीं शायद दिल्ली हरियाणा बॉर्डर दिल्ली पकड़े गए थे. हाँ. दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे पकड़े गए थे. दिल्ली हरियाणा कौन सी बॉर्डर थी, याद है आपको? मैं नाम याद नहीं है कहाँ एग्जैक्ट जगह की जगह, बट हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे. और वो भी उसमें भी ही वाज आई थिंक कैमोफ्लेज्ड. उन्होंने कपड़े चेंज कर रखे थे ऐसा कुछ ना. हाँ, he was on run for 59 days. वाओ. हाँ. He was changing locations and we were after him. राइट. और इनको जब पकड़ा गया था तो दिल्ली पुलिस का जो क्राइम ब्रांच है उनकी मदद से उन्होंने ही पकड़ा था. इनफैक्ट हमारे अफसर थे उनके साथ, बट बेसिक इंटेलिजेंस गैदरिंग डेवलपमेंट वाज डन बाय द दिल्ली पुलिस. सो आई एम अज्यूमिंग कि अच्छा, एक तो फैक्ट ऑफ द केसेस कि देयर वर 2 सेपरेट फीमेल्स और सेट ऑफ फीमेल्स जो आगे आके कहती हैं कि दिस फॉलोइंग स्पिरिचुअल टीचर गॉडमैन, इन लोगों ने there is sexual crimes done by them, and then somebody comes and accuses Asaram Bapu as well, the father and the son. These are the facts. Now what happens as far as a police officer and as far as the commissioner of Surat is concerned? Like, it comes to your table, एक फाइल आती है आपके टेबल पे, क्या आता है? नहीं नहीं, इस केस में तो आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस, शाम का समय था, आई वाज जस्ट अबाउट टू लीव. तो मेरी एक डीसीपी है थी, मतलब शी इज अ लेडी ऑफिसर, 2008 बैच की आईपीएस ऑफिसर है, शोभा बूतरा नाम है. वो आई, बोली सर एक लड़की आई है मेरे पास और वो रेप का कंप्लेंट दे रही है और शी इज नेमिंग आसाराम बापू सन. तो मैंने कहा बुला लो, लेट मी ऑल्सो टॉक टू हर. तो लड़की आई मेरे पास और उसने जो भी रिवील किया दैट वाज हैरोइंग. इनफैक्ट काफ़ी डिटेल में उसने जो भी चीज़ें बताई, तो प्राइमा फेसाई इट वाज देयर कि शी हैज़ बीन अब्यूज्ड. तो उसी की एक और रिलेटिव थी, सो फार एज आई रिमेम्बर, वो भी आई थी उसके साथ. तो वो बोली कि मैं भी बोलना चाहती हूँ. उन्होंने कहा बताओ क्या हुआ. तो उसने आसाराम बापू के बारे में बताया. अब आपकी नॉलेज में अगर एज ए पुलिस ऑफिसर ये चीज़ें आती हैं तो देयर इज नो अदर वे आउट बट टू इन्वेस्टिगेट ना. द राइट थिंग इज दैट. हाँ. तो मैंने इनको कहा कि आप इनकी दोनों की कंप्लेंट रिकॉर्ड कीजिए, केस रजिस्टर कीजिए और इन्वेस्टिगेट कीजिए. आपने डीसीपी को कहा? हाँ जी जी जी. और अकॉर्डिंगली वो केस रजिस्टर हुआ. आसाराम बापू के अगेंस्ट में जो केस रजिस्टर हुआ वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया टू अहमदाबाद ऑन द पॉइंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. ठीक. नारायण साई का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ. और इन केसेस में चूँकि ये जो रेप की एक्यूजेशंस थी वो पुरानी थी, मैनी इयर्स. ठीक. ठीक. इफ आई रिमेंबर करेक्टली 2003-4 के आसपास का था. I was in 2013. So 10 years. 10 years almost. तो अब एविडेंस तो जो मैं बता रहा था उस टाइप का एविडेंस मिलना तो बड़ा मुश्किल था. जी जी जी. तो इसमें लॉ में एक प्रोविजन है इस तरह के केसेस में कि जो भी विक्टिम है उसको पुलिस शुड टेक हर टू द मैजिस्ट्रेट, प्रेफरेबली लेडी मैजिस्ट्रेट, और उसके सामने उसका बयान रिकॉर्ड होता है. वो 164 का जो बयान होता है ना, कन्फेशनल स्टेटमेंट टाइप्स. ठीक. तो जो अगर मैजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड होता है उसका एविडेंशियरी वैल्यू काफ़ी हाई रहता. तो वो रिकॉर्ड हुआ. वहाँ भी उसने वही बात बोली जो पुलिस को कही थी. तो एक तो एविडेंस हो गया. फिर उसने जो भी इंस्टांसेस बताए थे उसके कोरोबोरेटिव एविडेंसेस, फॉर एग्जांपल कहती कि मैं इस दिन इस समय यहाँ पे थी और ये आश्रम था. तो वी कलेक्टेड द एविडेंस कि उस आश्रम में उस दिन नारायण साई थे कि नहीं थे, मूवमेंट था कि नहीं था. तो वो कोरोबोरेटिव एविडेंस वी कलेक्टेड. तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें कलेक्ट की. फिर कुछ लोगों ने कन्फेस भी किया तो उनका भी 164 स्टेटमेंट लिया गया. और लोगों ने कन्फेस किया टू हैव बीन सब्जेक्ट टू द सेम क्राइम. यस, जैसे मान लीजिए
ऐसा तो नहीं है ना कि उसको केवल इट इज बिटवीन द गॉड मैन एंड द गर्ल, राइट। आश्रम के और लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं, दोस्त को एक्यूज्ड उन लोगों ने कन्फेस कर दिया कन्फेस किया। और वो अंडर प्रेशर कन्फेस किया? नहीं, अंडर प्रेशर नहीं। नहीं मतलब प्रेशर एज इन कि अब ये आ रहे हैं, दे नो दिस इज नाउ ओपन कि अब इन्वेस्टिगेशन वो होगी। प्रेशर, पुलिस का कोई प्रेशर नहीं। फिर? और जो भी कन्फेशन होता है वो अगर हमारे सामने कन्फेस करते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ ये भी एक बात है। तो नॉर्मली एज पुलिस ऑफिसर आपने हमें बता दिया, ठीक है, हमने आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन कोर्ट उस चीज़ को मानती नहीं है। आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट दैट 1 सेकंड। मेरा मतलब यहाँ पे सर ये है कि जो को अक्यूज्ड है, जो खुद से आगे कह रहे हैं कि हम भी इन्वॉल्व थे, उनके दिमाग में कुछ मॉरल ये चल रहा था कि यार हमने गलत किया है, वी शुड ऑल्सो, और वाज इट लाइक अब पुलिस इज गोइंग टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग और हमारे घर पे भी आएगी देखिए तो वो डर रहता है, डर रहता है। definitely, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर मोरल वो रहता तो पहले ही नहीं बोल देते क्या। सही बात है। तो हाँ जब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में उनको लगा कि पकड़े जाएंगे या हमें अरेस्ट होंगे या तलाशी होगी, तो जनरली बता देते हैं। तो नॉर्मली अगर कोई डिटेल बता रहा है तो हम तो रिकॉर्ड करेंगे उस चीज़ को, राइट। और उसके बाद कोर्ट में ले जाके उनका बयान कराते हैं। अगर वहाँ भी वही चीज़ बोलते हैं, देन व्हेन वी फाइल द चार्जशीट देन वी डिसाइड कि ये एक्यूज्ड को एक्यूज रहेगा या हमारा मेरा अप्रूवर हो जाएगा या अच्छा। witness हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और आप ये क्यों कह रहे थे कि सर कोर्ट में पुलिस के सामने कन्फेशन का कोई मायना नहीं होता? लॉ है, इंडियन लॉ है। पुलिस के सामने जो भी बयान होता है वो तो साइंड स्टेटमेंट नहीं होता है, ठीक है। और पुलिस का सामने जो भी बयान होता है वो कोर्ट में फिर से रिकॉर्ड होता है ट्रायल के टाइम में। और लॉ भी ये है कि पुलिस के सामने अगर कोई कन्फेस करता भी है तो हमेशा ये माना जाता है कि अंडर ड्यूरेस किया होगा, अच्छा। पुलिस ने मारपीट की होगी, डराया होगा, धमकाया होगा। और नॉर्मली एक्यूज वो प्ली भी लेता है कोर्ट में कि साहब हमको डर में हम डरा के हमसे बयान ले लिया। ठीक ठीक ठीक। तो उसका तरीका यही है कि आपको अगर लगता है कि ये सच बोल रहा है तो पुलिस के सामने बयान हो जाता है, फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं कि साहब ये बोलना चाहता है, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। तो वहाँ भी अगर सेम बयान होता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसका वैल्यू ज़्यादा रहती है। वो तो सर अगर मान लो आपके सामने कुछ बोल दिया और बाद में जाके पलट गया तो बड़ा एम्बैरेसिंग भी होता होगा, नेचुरली, है ना? हाँ। तो आप कह रहे थे कि अच्छा फिर को अक्यूज्ड वगैरह सामने आने लगे, आपने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी कुछ गैदर कर लिया फिर वो इन्वेस्टिगेशन चला। और चूंकि एक्यूज को भी पूछताछ करनी ज़रूरी होती है और ये भाग रहे थे, तो आफ्टर 59 days ही वाज अरेस्टेड। उनका इंटरोगेशन हुआ जिसमें ही मोरलेस ही कन्फेस्ड एवरीथिंग। अच्छा, ही कन्फेस्ड, राइट। मेरे ख्याल से उसका ट्रायल भी होगा, सजा भी हो गई। चेक कर। आई एम श्योर देर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। जैसे चलो इन्होंने कन्फेस कर दिया फॉर वट एवर रीजन, कुछ लोग नहीं भी करते होंगे, स्टेडफास्ट भी रहते होंगे। हाँ, नहीं करते। जो हार्ड एंड क्रिमिनल है वो नहीं करता है, और उनको विश्वास होता है कि ट्रायल में वो निकल बचा ले जाएंगे। हाँ तो हम फिर उसी हिसाब से एविडेंस कलेक्ट करते हैं, जो भी साइंटिफिक, डॉक्यूमेंट्री, ओरल, कोलैबोरेटिव एविडेंस होता है, कलेक्ट करके हम लोग फिर चार्जशीट फाइल कर देते हैं। लाइफ एंड आई थिंक 5 लाख रुपीस की पेनल्टी थी। मेरा क्वेश्चन ये सर, आपने इफ यू डेल्ट विद इनफ हार्डन क्रिमिनल्स एज एन इन्वेस्टिगेटर, एज कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड सच, इज देयर अ साइकोलॉजिकल डिफरेंस मार्केटली बिटवीन एन एवरेज सिविलियन एंड अ हार्डन क्रिमिनल? अगर आप आंकड़े देखें तो अगर आप 100 लोगों को पकड़ते हैं पुलिस स्टेशन या पुलिस में, तो उसमें से करीब 85 लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं। कई लोग अपनी गलती से कर बैठते हैं, कई जुनून में कर देते हैं, गुस्से में कर देते हैं, कुछ लोग परिस्थिति के कारण कर देते हैं। तो दे आर नॉट टेकन एज ए हार्डन्ड क्रिमिनल। जी। हार्डन्ड क्रिमिनल वो होते हैं जो बार बार एक ही चीज को करते हैं, वो मर्डर हो, एक्सटॉर्शन हो, गैंगस्टर्स होते हैं ना, सो उनका साइकी टोटली डिफरेंट होता है। दे विल टेल यू एवरीथिंग एंड दे नो कि ये हम बता तो रहे हैं बट इसका कोई वैल्यू नहीं है।
they can tell you so many things but they can misguide you also. Hmm. बहुत से चीज़ें काउंट करती हैं, उनकी साइकोलॉजी इज टोटली डिफरेंट. Hmm. नॉर्मल कोर्स में जो ऑफेंडर्स होते हैं वो बेचारे, Sorry, sir. मैंने जैसे कहा कि उनकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो ऑफेंस कर दिया तो वो तो एडमिट कर लेते हैं, उनको परेशानी भी नहीं होती है. और अगर वाकई में क्राइम किया है, एविडेंस मिलता है, तो हम लोग फिर कोर्ट में भेज देते हैं उसको. बट जो हार्डन क्रिमिनल होता है, क्या उसका सोसाइटी के प्रति और लोगों के प्रति, पुलिस के प्रति नजरिया डिफरेंट होता है? बिल्कुल डिफरेंट होता है. अब टेररिस्ट हो, गैंगस्टर हो, तो नेचुरली उसका नज़रिया डिफरेंट होता है. पुलिस के इंटरोगेशन में तो बोलते हैं, हाँ. बात करते हैं, बनते हैं कि हम बहुत मासूम हैं, ऐसा है वैसा है, बट वी नो दे आर नॉट गुड पीपल, दे आर नॉट गुड फॉर दिस सोसाइटी. And you can tell by what? Are there any symptoms in their behavior? No, you can make out. You can. While you are talking to a person who is a criminal, Hmm. an hardened criminal, though he will be very good to you, talk to you nicely. अब काफी क्रिमिनल्स ऐसे हैं जिनको दे आर वेरी फेमस And they enjoy it. and they enjoy their fame. Yes. But when you talk to them, you'll find them to be very well educated, very well Read. expressive, हाँ. very well read. Hmm. They're good. आपको देख के नहीं लगेगा कि they are criminals. Smart. But when you interrogate them as a police officer, you will find the difference. उसको मैं explain नहीं कर सकता, but you can make out कि Is there a cat and mouse? Like, मतलब अब होता है, है ना, होगा होता है. कि he's playing something and you हाँ, are हाँ, trying to choose it. वो भी तो जज करते हैं ना कि आप कितनी दूर तक जा सकते हो. हाँ. और कितनी दूर तक जाने का मतलब किस सेंस में? मतलब उनको परस्यू, उनका इंटरोगेशन, उनका जो भी बयान देते हैं उसको क्रॉस चेक कितना कर सकते हो. इंटरेस्टिंग. या ये भी होता है कि वो आपको मिसगाइड कर देते हैं ना, किसी को फंसाने के लिए उल्टी सीधी स्टोरी बना के उधर डाइवर्ट कर देता है. राइट. कई दफ़े ये भी होता है. एंड यू हैव टू टेक अ जजमेंट कॉल वहाँ पे कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है. कई दफ़े आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है, यू कम टू नो. एंड कई दफ़े यू कैन रीड ए पर्सन कि सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है. कैन रीड ए पर्सन. I feel like being in the interrogation room for a long enough time, and I'm sure you spent it, आप आदमी को देख के you can probably tell 3x more informational pointers than an average civilian. Do you find that? Like कि मैं आप you can read body language? Yes, एक्सपीरियंस है. Yeah. I can, मतलब अब तो खैर चलिए, I am retired now, Right. but when I was in the police, if somebody comes to me, I can make an assessment कि ये कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है. हाँ. इवन आपका कंप्लेनेंट भी आता है, देन ऑल्सो यू हैव टू जज ना कि वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है. तो पता चल जाता है कितना सही है, कितना गलत है. एक्यूज का तो क्या कि यू इंटरोगेट, यू इंटरेक्ट मोर इंटेंसली. Right. तो उस समय पता चल जाता है कितना सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है. Interesting. और ये instinct पे पता लगता है. ना? इंस्टिंक्ट हाँ. है, ये तो इंस्टिंक्ट है. यू पुलिस इंस्टिंक्ट बोल सकते हैं आप इसको. यू कैन मेक आउट. वो झूठ कोई बोलेगा तो पकड़ा जाता है फिर. I'm imagining कि कोई interrogation room से एक officer goes out and says, I know ये झूठ बोल रहा है. And like that is a conversation you're having purely on instinct. फिर उसे cross verify किया जा रहा है and then from there it is being pursued. We also play game ना. Tell me a game. Tell me a game you play, sir. मैं बड़ा interested हूँ. हाँ. मैं हार्डन क्रिमिनल की जो बात कर रहा हूँ, तो वी ऑल्सो प्ले कैट एंड माउस गेम. वी ट्राई टू ल्योर, वी ट्राई टू फाइंड आउट, वी ट्राई टू एनकरेज कि बोलो, कितना बोलोगे. आफ्टर ऑल, ए क्रिमिनल कैनॉट मैच ए पुलिस ऑफिसर. No. No. You are convinced on that. Yeah, And the criminals, I'm sure, think कि they can. they think they Yeah. can, but कहीं ना कहीं तो डिफरेंस है, तभी तो वो. वहाँ है और आप वहाँ हो. हाँ हाँ हाँ. तो are you at liberty to disclose the kind, because I know you've been in the interrogation room in some very sensitive matters too. Right, yes, yes. Are you at liberty to disclose ki what is the kind of interrogation techniques you are employing in that moment? जैसे, okay, I know this from crime fiction and that is not enough. But
रूम को ठंडा रखते हैं, या आप समझ रहे हो पानी नहीं देते सो दैट वो थोड़ा इरिटेट हो एंड स्टफ लाइक दैट, इज दैट पार्ट ऑफ द रेpertoire? नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। आप लोग को ये जो स्टोरीज है ना हाँ, ये मूवीज है सर। मूवीज में, ठीक है, हाँ, इट्स ऑल राइट, राइट। लेकिन ये इंटरोगेशन आजकल कोई मारपीट नहीं करता है, बिकॉज लॉ हैज बिकम वेरी स्ट्रिक्ट so far as fundamental rights are concerned. आपका अगर एक्यूज्ड है और आप इंटरोगेट कर रहे हो, जैसे आप मेरे से अभी सवाल जवाब कर रहे हो, तो यू हैव रेड अबाउट मी, यस। यू हैव डन सम रिसर्च, तो हम भी जब पूछताछ किसी से करते हैं तो तैयार होकर करते हैं, हाँ, ऐसा नहीं कि ऐसे ही पूछ दिया। जी 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 जी। तो जहाँ वो कॉन्ट्रडिक्ट होता है, देन यू शो, यू टेल कि हाँ तुम झूठ बोल रहे हो, like that. It's a technique. So, and of course, it's a psychological warfare also. Sometimes the accused also play a game of psychology. You also play. But no beating, no terrorizing, nothing. आई एम श्योर। Yeah. मतलब अगर आपके जो उसने बयान देना है वो कोर्ट में होल्ड अप ही नहीं करना, तो उसे पीट के भी क्या हो जाना है? पीटने का कोई नहीं बोलता है, कोई I'm नहीं। telling you, और वो जो बोलेगा झूठ बोलेगा। अच्छा, वो डर के ही बोलेगा। आपको अपनी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। You have to prepare yourself कि आपको पूछना क्या है। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल इन योर टूल किट इज देन डॉक्यूमेंट एंड फोरेंसिक। Yeah. दैट विल एस्टैब्लिश द ट्रूथ। उसके बोलने ना बोलने पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। व्हाट अबाउट पॉलीग्राफ सर? पॉलीग्राफ का क्या सीन रहता है? वो इट्स अ वेरी फेमस मूवी डिवाइस आल्सो। पॉलीग्राफ टेस्ट जो होता है, दैट इज एन एड टू इन्वेस्टिगेशन। सपोज मुझे लग रहा है कि आप पूरी बात नहीं बता रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो आई पुट यू ऑन पॉलीग्राफ टेस्ट। अच्छा, पॉलीग्राफ टेस्ट इज ए नॉन इन्वेजिव टेस्ट। मतलब वो स्किन के अंदर नहीं जाएगा। नहीं, तो वो साइंटिफिक टेस्ट है और उसमें कोर्ट की परमिशन लेके हम लोग करते हैं। उसमें अगर आप झूठ बोल रहे हो तो जो वेरिएशन साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है, उसके ऊपर से डिसीजन होता है कि इस क्वेश्चन पे इसने सच बोला है या छुपाने की कोशिश की। ठीक है, सो दैट इज योर फॉर द इन्वेस्टिगेट, दैट इज नॉट एन एविडेंस, इट्स अ कॉन्फर्मेशन। हाउ वुड यू इट गिव्स यू एन आइडिया एज एन इन्वेस्टिगेटर कि इस लाइन पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आई विल बी एबल टू gather the evidence. So, polygraph test is only an aid to the investigating officer. इट्स नॉट एविडेंस अनटू इटसेल्फ। It is not an evidence. Certainly अच्छा, not. तो यू कैन डिस्कवर कि ये ट्रैक फॉलो करो या ये ट्रैक फॉलो करो उसके सच झूठ से। Yes. एंड फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड हम हाँ, and secondly, वो जो जहाँ झूठ बोल रहा है या दिख जाता है झूठ बोल रहा है, फिर उसके एविडेंस कलेक्ट हो जाता है, that goes against that accused. अच्छा, फिर वो रेट्रोस्पेक्टिवली इट कैन बी एडेड टू द होल थिंग। हाँ, और ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी मेजर करते हैं ना सर? हार्ट रेट वगैरह कुछ मेजर होता है, क्या होता है? वो आप रेस्पिरेशन कितना हो रहा है, हार्ट रेट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो साइंटिफिक उनके तरीके हैं, 3-4 तरीके। फॉर्मूलाज हैं, एल्गोरिथम्स हैं, उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। इट्स अ वेरी साइंटिफिक मेथड and very trusted in the investigative community. it gives, as an investigating officer, it will give me an idea कि ये मेरा विटनेस या मेरा एक्यूज कितना सही बोल रहा है, but that is not a conclusive piece of evidence. Certainly not. You were also famously involved in the Lalu Prasad Yadav fodder scam situation. Do you remember that fondly? I think it's a wrong Yes. question to ask. I remember it, and हाँ. I don't forget it, like, Right. because मेरे ख्याल से that time I was very young, I was only an SP, or Where were you posted? I was in Dhanbad, Dhanbad. Which was then Bihar only. then Bihar. Yes. Now it is in Jharkhand, no sir? It is in Jharkhand. Yes, हाँ. So I had only 12 years of service there, and investigating a chief minister, serving chief minister. You were the investigating officer. I was the supervisory officer. Okay. But CBI में क्या होता है, at SP level you work like an investigating officer, because you have to be with the IO all the time, guide him, tell him कैसे करना है, personally involve yourself into asking questions from the accused or witnesses. तो CBI में सिस्टम अलग है। अब जैसे पुलिस में जो SP है वो चिल करेगा। वो अलग है, वो हाँ. तो कप्तान है जी.
सीबीआई में जो एसपी लेवल पे ऑफिसर्स आते हैं, दे हैव टू बी विद द आईओज ऑल द टाइम. You work more or less like an IO. Okay. I also worked like an IO. Hmm. And your interest also, you have to see, talk, read the documents, tell them how to go about it. So I was quite deeply involved into the investigation of fodder scam cases. 64 केस थे, 64. 64, Wow. जिसमें 6 या 7 केसेस में मिस्टर यादव वाज एन एक्यूज्ड. Hmm. तो नेचुरली इन्वेस्टिगेशन तो काफ़ी, और चूंकि स्टेचर सीएम का बहुत हाई होता है, जी. आईओ हमारा इंस्पेक्टर लेवल का या डीवाईएसपी लेवल का होता है, तो उसको भी ये संकोच तो रहता है कि बहुत हाई लेवल के पॉलिटिशियन से या ऑफिसर से डायरेक्टली बात करने में थोड़ा सा तो झिझक होती है. बिल्कुल. तो एज एसपी ये फ़र्ज होती है हमारी कि हम आईओ को असिस्ट करें हर चीज़. उसे कॉन्फिडेंस दें Confidence in that दें. way. तो आप उस टाइम पे सीबीआई में डेप्यूटेड थे एंड देन यू वर वर्किंग विद द लोकल पुलिस, द बिहार पुलिस, या फिर? सीबीआई का सिस्टम क्या, सीबीआई हर स्टेट में उनके ऑफिसेज हैं, ठीक है. और जो ऑफिसर्स हैं दे आर हेडेड बाय एसपी रैंक ऑफिसर. ओके. अभी थोड़ा चेंज हो गया, जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो उनमें डीआईजी हेड करता है. हम्म. धनबाद सीबीआई का ऑफिस था. 1980 में उसको स्टैब्लिश किया गया था. मैं तो 92 में गया था. हम्म. सीबीआई के ऑफिसर सीबीआई के ही अंडर काम करता है, बट वी कोऑर्डिनेट विद द लोकल पुलिस. कोई ज़रूरत पड़ती है तो लोकल एसपी के साथ बात करके, वी रिक्वायर सिक्योरिटी चाहिए, असिस्टेंस चाहिए तो टेक, बट वी आर टोटली इंडिपेंडेंट. आई थिंक मैं अब ये इन्वेस्टिगेशन 92 में शुरू हुई थी. नहीं, 96 में. 96 में. Yeah. आई वाज बोर्न इन 96. अच्छा. तो मैंने, मतलब इट इज़ लाइक जब मैं जवान हुआ ना, तो हमने तो बिहार की रेपुटेशन सुनी, हमने उसके सर्कमस्टेंस नहीं सुने. जो हुआ फॉर्डर स्कैम, हमें पता था हिस्टोरिकल कुछ है कि लालू प्रसाद यादव वाज इन्वॉल्वड इन अ स्कैम. हमारे लिए वाज अ हिस्टोरिकल फैक्ट. और एट दिस पॉइंट, डूइंग द वर्क दैट आई डू ऑन द इंटरनेट, मेरी ऑडियंस तो और भी इज यंगर देन मी. बिल्कुल. So nobody really remembers, let us say. Can you lay out the facts of the case and क्या investigation etc. Can you tell me that story? फॉर्डर स्कैम जैसा इसका हेडिंग है या नॉमनक्लेचर है, तो फॉर्डर मेंट फॉर द Cattle. कैटल. जी. ठीक है. इसके 3 कंपोनेंट थे. एक तो चारा फॉर्डर हो गया, एक हो गया आपका वेटनरी मेडिसिन. ठीक है. और तीसरा हो गया आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंस्ट्रूमेंट्स. एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट किसी भी स्टेट में या मिनिस्ट्री में या यूनियन मिनिस्ट्री में जो भी होता है, दैट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइव स्टॉक इन आवर कंट्री. एंड तो जैसे लाइव स्टॉक में गाय भैंस आ जाती हैं, कहीं पे बकरी आ जाएगी, कहीं पे याक आ जाएगा. याक आ जाएगा. तो गवर्नमेंट इज वेरी पर्टिकुलर कि ये जो क्वालिटी ऑफ लाइव स्टॉक शुड बी मेंटेन्ड, इम्प्रूव्ड, और उनको लुक आफ्टर ठीक से किया जाए. जी. हर एक स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है. जी. यू जस्ट कैनॉट इग्नोर इट. जी. तो बिहार में भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट था. उसमें फंड एलोकेटेड थे, बजट, कि चारा खरीदने में कितने पैसे, एआई इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कितना, और इसके लिए मेडिसिन के लिए. तो सारा ये घोटाला जो है, स्कैम जो है, इन्हीं 3 चीज़ों की परचेजेस के ऊपर है. अच्छा, कि स्टेट जो परचेज करता है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से, हाँ. उसमें कुछ घोटाला है. हाँ. और वो घोटाला क्या है? घोटाला ये था कि आपको जैसे चारा आपने ऑर्डर, नहीं, शुरुआत ऐसे कीजिए, बजट पास होता है, उसका अलॉटमेंट लेटर जाते हैं कि आपको इस मद में इतने पैसे गवर्नमेंट अलॉट कर रही है इस साल में खर्च करने के लिए. ठीक है. मान लीजिए 1000 रुपये अलॉट हुए चारे के लिए. तो ये जो एक्यूज थे, ये उसमें 1000 के आगे 2 जीरो और लगा दे. अच्छा. फोर्जरी हो गई. हाँ. ठीक है. फिर वो डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर तक गया, तो उस बजट में आपने 1000 की जगह आपने उतना दिखा दिया कि हमने इतना खरीद लिया. ठीक. खरीदा ही नहीं,
और झूठा दिखा दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उस समय की स्टोरीज पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे उन्होंने नंबर्स दिए थे, व्हीकल नंबर्स, जिस पे चारा ट्रांसपोर्टेशन दिखाया गया था, वो स्कूटर के नंबर थे, रिक्शा के नंबर थे, ऑटो के नंबर थे। तो मतलब वो चारा आया ही नहीं और आपने खर्चा दिखा दिया। खर्चा दिखा दिया। ठीक है, मेडिसिन आई नहीं और खर्चा दिखा दिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुआ नहीं और खर्चा दिखा दिया। तो बेसिक यही है, और उसके लिए उन्होंने वाउचर्स गलत बनाए, बिल्स गलत बनाए। तो इसमें जो सप्लायर्स थे वो और नीचे के जो ऑफिसर्स थे वो कनाइव करके उन्होंने ट्रेजरी से पैसा साइफन ऑफ कर लिया। कि वो जो खर्चा दिखाया वो जेब में डाल लिया। हाँ, हाँ। ये पूरा घोटाला का उस समय 96 में, और ये पीरियड तो और पहले का था जिस समय ये घोटाला हुआ था। तो वो 950 करोड़ का उस समय का ये स्कैम था, विच वी इन्वेस्टिगेटेड। हाउ डू यू फाइंड आउट कि ये स्कैम चल रहा है? हमने नहीं फाइंड आउट किया, ये हुआ क्या कि स्टेट गवर्नमेंट ने, यही डिपार्टमेंट्स ने, उनको लगा होगा गड़बड़ हो रही तो इंक्वायरी करनी शुरू की। फिर उसके बाद एक PIL फाइल हुई थी हाई कोर्ट पटना में, उसमें ऑर्डर हुआ CBI इन्वेस्टिगेशन के लिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो गवर्नमेंट आई थी अगेंस्ट दिस ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन होगा बट इट विल बी मॉनिटर्ड बाय द हाई कोर्ट। तो CBI जो भी इन्वेस्टिगेशन करती थी हर महीने उसका मॉनिटरिंग हाई कोर्ट करता था कि ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है। नहीं तो वॉक मी थ्रू, आपको अब ये हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया है, हाउ डू यू बिगिन दैट इन्वेस्टिगेशन? लाइक बिकॉज एक हाई प्रोफाइल केस है, एक चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है। नेचुरली ये बहुत बड़ा केस था। हाँ, 64 केसेस वी रजिस्टर्ड। राइट। CBI का वेयर विदॉल ब्रांच का इतना नहीं होता है कि इतने ज़्यादा केसेस इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि वी इन्वेस्टिगेट लिमिटेड केसेस। तो उस समय CBI हेडक्वार्टर ने एक टीम बनाई, जो जॉइंट डायरेक्टर CBI कैलकाटा जो देखते थे उनको हेड बनाया, और जितने भी SPs थे उनके साथ रहे। बाहर से भी काफ़ी एडिशनल मैन पावर दिया गया, IOs का और SPs का, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स का, और एक पूरा यूनिट बनाई गई टू इन्वेस्टिगेट दीज केसेस। वो यूनिट काफ़ी CBI में एक बहुत ख़ास बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब चार्जशीट हो जाता है केस, तो कोर्ट में जो ट्रायल चलता है उसको भी CBI परस्यू करती है। कि ट्रायल फेयर है कि नहीं? ट्रायल में कन्विक्शन लाने के लिए। अच्छा। तो वो परस्यू करते हैं, और उसमें CBI के जो PP होते हैं, जो IOs उस समय रहते हैं, वो उनका बयान, विटनेसेस का बयान ठीक हो, ताकि जो एक्यूज्ड हैं उनको सजा हो। सिस्टम ये नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेशन करके भूल जाइए। जी। टिल द टाइम द केस इज फाइनलाइज्ड बाय द कोर्ट, कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा, तो CBI उसको फॉलो करती है। अगर एक्विटल हो जाता है तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भी अपील का होता है वो करते हैं। इट्स ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जिनको आपने चार्जशीट किया उनको सजा हो, ये भी इंश्योर करती है CBI। बट was there a clinching moment? जैसे अब ठीक है, the PIL has arrived from, sorry, PIL फाइल हुआ, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, CBI इसको हैंडल करेगा, CBI इन्वेस्टिगेट करता है। there was a clinching moment कि we know we have the evidence, damning evidence है हमारे पास। यस, बिल्कुल। And what was that moment? ये परचेज वाउचर्स वगैरह? ये तो पूरा केस डॉक्यूमेंट बेस्ड था। ठीक। क्योंकि अब मैंने बताया बजट लोकेशन से लेके परचेज तक। जी। तो वो जो भी गलत पेपर बना है उसको आप एग्जामिन कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। फॉर एग्जांपल उसने वाउचर या बिल में लिखा कि मैंने इतना सप्लाई किया, मैं ट्रांसपोर्टेशन ऐसे किया, ये नंबर्स हैं, वो नंबर्स का इन्वेस्टिगेशन हुआ, झूठे निकले। फिर जहाँ से उसने सामान खरीदा था वहाँ हमने पता किया वहाँ से सामान दिया ही नहीं है, जो सप्लायर है उसकी जेब से गया ही नहीं है। हाँ। तो वो एविडेंस हुआ। फिर जो ये पैसा इन लोगों ने लिया उसको कहाँ इन्वेस्ट किया, कैसे यूज़ किया, उसका एंड यूज़ किया है, उसका इन्वेस्टिगेशन किया।
वो भी पता है पेपर ट्रेल कहाँ तक गई है वो? हाँ, अच्छा, हाँ। कहाँ लगा वो पैसा सर? जमीन उस- खरीदी होगी? जमीन, मकान, कई लोग घूमने घामने में, ऐश करने में। 950 करोड़ की है। नहीं, साढ़े हाँ, हाँ, करोड़ मतलब में तो कुछ तो सप्लाई हुआ होगा ठीक ना। ठीक, हाँ, शेयर हुआ होगा, बहुत लोग इन्वॉल्व रहे भी होंगे। काफी लोग इन्वॉल्व थे, तो अपना एसेट्स बनाते हैं लोग, जमीन हम्म। जायदाद खरीदते हैं। जनरली करप्शन के बाद लोग यही करते होंगे सर, जो करप्शन से पैसा आता है उस पे, बिकॉज देयर इज सो मेनी वॉच डॉग्स, इतनी सारी एजेंसीज, इतना कुछ रहता है, उसको जमीनों में, मकानों में ही लगाते होंगे लोग ज्यादातर। और मोस्टली बेनामी लगाते हैं ना, खुद पब्लिक सर्वेंट तो अपने नाम से लगाएगा नहीं। बिल्कुल। तो भाई ज़मीन है, मकान है, आजकल तो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो दूसरी तरह से क्रिप्टो करेंसी में डाल देते हैं। ये इज अ सीरियस प्रॉब्लम इट्स क्रिप्टो। अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, वेरी सीरियस। और दिस एरिया इज मोर लेस अनटच्ड नाउ। या उसका इन्वेस्टिगेशन भी बड़ा मुश्किल है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है। इट्स अभी जैसे ये महादेव ऐप वाला जो केसेस चल रहे हैं, अच्छा, मेरे को नहीं। बेटिंग के, हाँ बेटिंग का है ना, हाँ हाँ, कुछ होगी, गेमिंग वेबसाइट होगी, बेटिंग वेबसाइट होगी। उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रिप्टो। अच्छा। तो उसको खोजना बड़ा मुश्किल है ना। अरे हाँ 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 बाहर चला जाता है पैसा। तो मैं तो ये एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं, बट वो फॉरवर्ड स्कैम के भी पैसे ऐसे ही इधर उधर थे। इधर उधर इन्वेस्ट हुए। वर यू पार्ट ऑफ द अरेस्टिंग टीम फॉर? आई वॉज लीडिंग द इन्वेस्टिगेशन। या तो मैंने जो मेरे अंडर केस थे, वो फर्स्ट केस वी चार्जशीटेड। तो उसमें उनको इंटरोगेट करना, अरेस्ट करना, हाँ, चार्जशीट करना, आई डिड इट। आई वाज पर्सनली इन्वॉल्वड इन तो दैट। सर लाइक, अच्छा ठीक है, एंड आई मीन उस टाइम पे आई थिंक लालू यादव वाज जनता के लीडर बिहार के, एक सेंस में, नहीं ही कि बहुत वेरी पॉपुलर। पॉपुलर चीफ मिनिस्टर। हाँ, ही वाज क्वाइट important in the politics that हाँ, period. एंड आई थिंक इवन व्हेन आई वाज अलाइव एंड मे बी लाइक 10 12 15 साल का रहा हूँ, रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं उसके बाद, हाँ, है ना? हाँ। तो ही इज अ प्रोमिनेंट मैन इन इंडियन पॉलिटिक्स। आई थिंक ये जो जनता दल, आई थिंक जनता दल वाले जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन, स्टूडेंट लीडर ही थे ये एक टाइम पे, आई थिंक दैट ये इज जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट जब हुआ था जी। 75-76 में, स्टूडेंट्स एजिटेशन, जी। तो ये लालू यादव, नीतीश कुमार, ये लोग सब स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे उस समय। तो मतलब मास सपोर्ट्स। मास सपोर्ट, नो डाउट अबाउट इट। पॉलिटिशियन के तौर पे उनका जो पॉपुलैरिटी है और जो इम्पोर्टेंस है, वो तो था, उसमें तो कोई दो मत नहीं है। द रीजन आई एम आस्किंग इज, आई एम सेटिंग यू अप फॉर दिस क्वेश्चन कि अब आप जा रहे हो इनको अरेस्ट करने हैं, जिसके लिए पॉलिटिशियंस और गॉडमैन आर पीपल दैट सिविलियंस विल स्टैंड इन लाइन कि हम नहीं होने देंगे इन्हें कुछ। What does officer think in that moment and how does that interaction happen कि सर हमारे पास we have orders to arrest you? उस टाइम क्या हो रहा होता है? देखिए, ये स्ट्रेस तो रहता है कि यू आर वर्किंग इन ए स्टेट and you are investigating the head of the state where you are situated. तो एक peculiar सी सिचुएशन होती है जिसमें लगता है कि people will go against you, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन विल गो अगेंस्ट यू। लेकिन सीबीआई का जो एक महत्व है और जो इम्पोर्टेंस है इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सिस्टम में और लीगल सिस्टम में, उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, सीबीआई के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, बिकॉज दैट विल हैव अ लॉट ऑफ रिपरकशंस। वो सैंक्टिटी है। वो सैंक्टिटी है जी। इन केसेस में भी। आई विल गिव फुल पॉइंट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ बिहार कि दे प्रोटेक्टेड द सीबीआई। दे नॉट सपोर्टिंग तो नहीं कहना चाहिए, बट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं थे। there was no obstruction, a total cooperation, and never ever we felt that we are working in a state in a very threatening situation. कोई हॉस्टिलिटी नहीं है। पर्सनल लेवल पे ऑफ कोर्स दैट इन योर माइंड किसी कोने में ये रहता है कि ये नाराज होगा तो क्या हो सकता है, फैमिली का क्या होगा, या आपके जो ऑफिसर्स हैं उनके फैमिली का क्या होगा। तो वन हैज द ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, वन हैज टू एक्सेप्ट इट, अदरवाइज आप काम ही नहीं कर सकते।
You have to stand by your officers. So you have to stand by your officers' family members. You have to lead from the front, and you should be good in your work. तो वो चीज़ तो है, and उसका repercussions क्या हो सकता है on personal level. I was quite aware of it, and my officers were also quite aware of it, but still we did it. This personal repercussion, right? हम civilian life में we pretty much avoid all of that. Is your or an officer's psychology कि यार ये मेरा sacrifice है, ये मेरा त्याग है? Is that how you make peace with the fact कि मेरी family harm हो सकती है मेरे काम के चक्कर में? It's a very exceptional thing. देखो ऐसा है, जब वर्दी पहनते हो ना, first day when we donned the uniform in the academy, you have a feeling कि you have been given a responsibility and you have to carry it out. Like you cannot have this feeling कि मेरे बच्चों का क्या होगा, वाइफ का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, मैं ये करूँ या नहीं करूँ. If that feeling is there, then you cannot be a good police officer. Understood. And इस केस में भी वो एक होता है कि ठीक है, whatever it is देखेंगे. there, we'll face it. Also you were a younger man ना, मतलब एक जवान आदमी थोड़ा reckless भी ज़्यादा होता है ना? Like the age. नहीं, हाँ. मैं तो अभी भी वैसा हूँ. आप अभी भी reckless हो. तो वैसा कुछ नहीं है, but definitely we were under stress. मेरे को तो पर्सनली फोन पे भी काफी थ्रेट्स वगैरह दिए गए थे, बट आई डिडंट बॉदर अबाउट. Is there a discomfort in sharing these parts of your professional life? जैसे फोन पे थ्रेट आ रहे हैं, like ये सब informal, this is the underbelly एक तरीके से ना? नहीं, डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्टली कि हम ये कर दें वो कर दें, बट इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स द एक्यूज्ड की तरफ से तो आता ही था. आप कह रहे हो कि बिहार was the state of Bihar, state machinery of Bihar was not hostile etc. बिहार का इतना नहीं हॉस्टाइल, देखिए हाँ यू कैन मेक आउट कि हाँ implicit hostility है. यस कि बट सर वहाँ पे करप्शन का भी बहुत सीन नहीं रहता. अब तो मे बी इट इज लेसर. करप्शन कहाँ नहीं है. उस समय भी था, दूसरी जगह भी था. जो पकड़ा गया वो चोर. करप्शन तो हर जगह है, अभी भी है. और उसी लेवल पे अब तो ज्यादा है. अब ज्यादा है. मैंने जो केसेस हैंडल किए हैं, देखे हैं, तो नेचुरली द वॉल्यूम, द मैग्नीट्यूड इज मच मोर देन व्हाट वी हैंडल इन बिहार. And because as a news watcher, the perception is कि अब it is not that bad. कि जैसे मेरे को याद है 2011 में था जो वो ओम्बड्समैन वाला मूवमेंट हुआ था, अन्ना हजारे वाला एंटी करप्शन. उसके बाद द जनरल सेंटिमेंट विद द पब्लिक इज कि करप्शन इज लेसर. बट इतना जरूर है कि जो आपको फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट. गवर्नमेंट हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी. हाँ, ये जरूर है कि पहले अगर सड़क बननी है तो उसमें 80% खा गए, 20% लगाए, वैसा नहीं है. अभी चीज़ें बनती हैं, दिखती हैं, और क्वालिटी भी अच्छी है. तो नेचुरली उस लेवल का करप्शन कम है. बट पीपल हु आर इंडल्जिंग इन करप्शन, दे नो कि उनको कहाँ से साइफन ऑफ करना है. आपके लॉ इन्फोर्समेंट करियर में जैसे ओके अगेन आई एम स्पीकिंग प्योरली एज एन एमेच्योर. मेरा एक दोस्त था who used to serve in the American military जब मैं अमेरिका में था. तो उसने मेरे को बताया सिक्योरिटी क्लियरेंसेज रहते हैं, दे हैव सीक्रेसी कोड्स. उनको कुछ लोगों को कुछ ही चीज़ें पता होती है, कुछ ही लोगों को कुछ चीज़ें पता होती है. ये हमारे यहाँ भी दैट इज द प्रोटोकॉल. हाँ, दैट इज द प्रोटोकॉल. सो इज देयर थिंग्स in your career you've encountered that if the public knew they would be very shocked but they don't? What? जैसे I had somebody here who is an expert on Subhash Chandra Bose, and his reading was that Bose was alive much later after after his supposed death, and that there is sufficient evidence with investigative bodies to that effect, but it cannot be released to the public. Is there anything of that nature that has ever come across? काफी चीजें क्लासिफाइड होती हैं ना. और whatever other agency is doing, they will not tell everything. तो हो सकता है classification of documents on the basis of its confidentiality or secrecy. Government everywhere maintain, all over the world. Yeah. And how transparent would you think is the institution-individual relationship in India? कि public और
गवर्नमेंट की सीक्रेसी, मतलब कितना सीक्रेटिव रहता है और कितना ट्रांसपेरेंट रहता है? हाउ मच ट्रूथ डू वी नो? देखो अभी तो डिजिटल वर्ल्ड है जी। और गवर्नमेंट जो करती है या ऑफिसर्स जो करते हैं दैट इज ऑन दी प्लेटफॉर्म, राइट। तो छिपाने के लायक कुछ नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इज देयर। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री, नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से नहीं बतानी चाहिए, वो नहीं बताती है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं बताएगी। बट जितना पब्लिक को जानना है उतना सारी चीज़ें तो ट्रांसपेरेंट हैं, उसमें कोई दो मत नहीं। आई नो आप एंड हमने इसको टच अपॉन किया था पहले शुरू में कि देयर वाज द, आप विजय माल्या वाले केस के साथ भी ऑन सम लेवल इन्वॉल्व थे, आप ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ भी इन्वॉल्व थे, एंड देन द फैक्ट दैट आपने बॉर्डर, नारकोटिक्स, लाइक देयर इज ऑल दी स्मॉलर प्लेसेस जो मेरे को लगता है एट अ फ्यूचर कॉन्वर्सेशन में मेरे को टाइम मिलेगा आपसे बात करने का। आज हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है, तो मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप कहीं सोच रहे हो कि एक बार में हमारा हो गया है। नहीं नहीं, मुझे भी निकलना है तो। हाँ, इसलिए तो आपके पास सर मेरे लिए कोई सवाल, कोई सजेशन? नहीं, कोई नहीं, यू आर टू गुड, मतलब यू हैव डन योर होमवर्क वेल। तो और मेरे ख्याल से जो बेसिक एक मिसकॉन्सेप्शन पब्लिक में होता है या यंगर जनरेशन में विद रिगार्ड टू द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या विद रिगार्ड टू द नेशनल सिक्योरिटी, तो वो अगर उस तरह के मिसकंसेप्शंस को रख के उस पर क्लैरिफिकेशन लोगे तो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द योर ऑडियंस आल्सो एंड फॉर यू आल्सो। फॉर एग्जांपल व्हाट काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन? जैसे अभी आपने बात अच्छा, की ना अच्छा। कि इन्वेस्टिगेशन में आप पीटते हो कि नहीं पीटते हो, हाँ, third खैर मैं सर डायरेक्टली वो नहीं कर रहा, मैं तो ठंडे पानी की बात कर रहा था। ठीक है, नो आई अंडरस्टैंड। तो ऑल दोस थिंग्स काफी मिसकंसेप्शंस है लोगों को। अब सीबीआई इज अ वेरी क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन, यस, कैसे काम करता है वो बहुत कम लोगों को पता है। राइट, तो उस लाइन पे इफ यू आस्क विल बी एबल टू टेल यस, जितना बता सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स, सम ऑफ द थिंग्स आई एम ऑल्सो नॉट सपोज टू डिस्क्लोज, बट फॉर द एजुकेशन ऑफ द पीपल या अवेयरनेस ऑफ द पीपल वी कैन ऑलवेज टेल। आई थिंक देयर आर 3 थिंग्स विद व्हिच आई विल क्लोज। एक तो सर कभी-कभी ना हमें कैरिकेचर्ड क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं क्योंकि हाँ। पब्लिक इमेजिनेशन में क्वेश्चन कैरिकेचर्ड है, मतलब एज अ रीजनेबल पर्सन आई नो, राइट, बट लाइक कोई दूसरा मेरे को लगता है इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल ट्रस्ट बिल्ड होता है ऐसी कॉन्वर्सेशन से, क्योंकि लोग रियलाइज करते हैं अच्छा यार, लाइक यू नो हम सिर्फ मीडिया सुन के सच नहीं समझ सकते, हमें आज किसी वी लर्न फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ व्हाट द ट्रूथ अबाउट एन इन्वेस्टिगेशन। मीडिया में तो ये है, आई हाँ। एग्री, आपको बहुत सी चीज़ें मतलब तोड़ मरोड़ के पेश की जाती हैं। उनका अभी हम सर पता है आपके आने से पहले बात कर रहे थे पुरानी न्यूज़ का, एक मेरे को याद है एक लड़का कभी उसमें गिर गया था वेल में, उसकी नॉन स्टॉप प्रोग्रामिंग चली थी न्यूज़ चैनल्स पे। तो न्यूज़ चैनल्स आर समवॉट एंटरटेनमेंट चैनल्स एंड इफ यू एवर टेक देम टू कोर्ट दे विल प्लीड एज एंटरटेनमेंट चैनल्स आल्सो, तो वो तो बच जाएंगे, उनको तो सेंसेशनलाइज करना है। और मेरे को लगता है तीसरा सर, पीपल हैव, इंडिया की जो पब्लिक कॉन्शियसनेस है इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम बाकी कंट्रियों की पब्लिक कॉन्शियसनेस। इंडिया जानना चाहता है, India wants to know its history, the younger generation, and it's due credit to them. They want to know the geopolitical consequences, they want to understand the political matrix, and there is a hope, which I did not even find 10 years ago, 15 years ago to be the case when I was younger. Because मेरी audience में we'd be surprised कितने 14, 15, 16 साल के बच्चे भी हैं जो देख रहे हैं. They want to know what does the CBI do? What does a man who's retired as a practically the entire portfolio of law enforcement, how does he think? So if at all, sir, I'll have Ansh coordinate with you. Please come back again. We'll talk Sure. for hours. Thank you so I much. love to do it. Thank you, sir. Thank you. This has been my pleasure. Thank you.